तो माय दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत सारे पॉडकास्ट देख लिए मेरे। तो आज भी इस में हम बियॉन्ड 9 to 5 में डिस्कस करने वाले हैं थर्ड ऑप्शन क्या? जॉब के बियॉन्ड। ऐसा जॉब के बियॉन्ड जिसमें आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अलग सीख रहे हो। और जैसा मैं कहता हूँ ना, लाइक जॉब में नहीं सिर्फ भी है, उसके बियॉन्ड भी है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। तो आज जो मैंने बुलाया है दोस्तों, वो है अमित मेहता जी। इनके बारे में जितनी तारीफ करूँ ना, बहुत कम है। ये बैंकर हैं, एक्स बैंकर हैं। उसके बाद प्रोफेसर बने। और प्रोफेसर बन के भी लोगों को क्या सिखा रहे हैं? कम्युनिकेशन। आप इंग्लिश में बोलो कैसे। समस्या है ना, रियल समस्या है ना, तो उनसे सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो लेट्स वेलकम अमित मेहता जी। अमित मेहता जी, कैसे हैं आप? Amazing, sir. I'm so very thrilled to actually be over here. तो Pleasure is all mine. अब आपसे सवाल ये है हमारा कि आप तो बैंकर थे, बड़ी इच्छा आपकी जॉब थी, बैंक की नौकरी छोड़ के प्रोफेसर की में कहाँ से आ गए? I think I always loved books. बुक से अलग सा प्यार था और पढ़ने लिखने में शुरू से ही एक अलग सा फोकस था। तो आई थिंक इवन इन द बैंकिंग पर्टिकुलर डोमेन व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, तो जो सैटरडे संडे आता था, वीकेंड्स आता था, तो आई यूज्ड टू गो एंड बाय बुक्स इन बंडल्स। एंड वो पूरा का पूरा सैटरडे संडे उसी में बीतता था। तो आई जस्ट थॉट दैट दिस कैन बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एक्चुअली टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर, बिकॉज आई फाउंड कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ गैप्स हैं जो कि क्लासरूम्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। I just wanted to bridge that particular gap. That is why I designed banking, cleared my NET, and now I'm a professor at a government MBA college. गुड। अब ये प्रोफेसर साहब हैं हमारे। प्रोफेसर साहब, आप बोलो ठीक है, आप एमबीए कॉलेज में पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा है। देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन मास्टर में कैसे आ गया इंग्लिश बोलने में? It's a very interesting story. So while I used to watch a lot of TED talks. So I found out Duolingo के जो founder हैं, he is also an professor, and he wanted to help the community. He felt that through English, he can actually bring about a change in the entire society. Duolingo is an $8 billion brand. So somewhere that was a spark which said कि नहीं, English के लिए कुछ कर सकते हैं. I tried to research about India. India has got more than 100 crore people who cannot speak in English properly. I found out my TAM, total addressable market. If I said कि एक रुपया भी सबसे अगर लेता हूं ना मैं उस इंग्लिश के कोर्स के लिए, just imagine how much potential I can actually address and actually make for myself. So not just in helping India rise, maybe not just in helping the students and these teachers rise in their particular life, I will also be servicing them and getting the uh, commensurate profits in that particular thing. So it was that kind of a mix for me, which motivated me. ओके। तो इंग्लिश ही क्यों? I feel English is something which is being taught in a very traditional way. If you look at the education system, जिस तरीके से English को आज भी approach करते हैं, grammar approach है, technical approach है, there is one teacher who knows all approach है। एक book है रेन मार्टिन जिसको भगवान और बाइबल और गीता के ऐसा मानते हैं। That approach itself is flawed because if you keep on following grammar, then your fluency gets delayed, and fluency is one of the biggest reasons which even the corporates, which even the people who are working in the corporates face a lot. तो हाउसवाइफ ही नहीं, स्टूडेंट्स ही नहीं, जो एक्चुअल जॉब में कॉर्पोरेट में जाके काम कर रहे हैं, उन्हें भी इंग्लिश से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है। आप किसी भी रैंडम रूम में जाके चेक कर लो और लोगों के सामने, कॉर्पोरेट के सामने बोलो, हाउ मेनी पीपल आर कॉन्फिडेंट टू स्पीक फॉर 2 minutes on this topic, and hardly 2 to 3 people will raise their hands out of 10. 60 to 70% of the people will not raise their hand because they're not confident about their communication skills, about their English skills. So I found that there's such a big gap, and if I can help that, if I can address that, there will be nothing like it. So that was my motivation to actually go for the English particular domain. And the idea was that we do it without grammar, without boring books, and without exercises. And our particular platform does it in just 21 days. And with the onslaught of AI now, we can help a student get mastery in just 2 minutes per day in 21 days. That was our solution. That is our solution. ओके। आप ये कह रहे हैं कि जो इंग्लिश है ना, आप इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाते हैं, करेक्ट? वेदर कम्युनिकेशन मास्टरी, कम्युनिकेशन कोच। सो आप पहले तो लोगों को डर लगता है कि पब्लिक के सामने कैसे बोलेंगे।
वो बड़ा चैलेंज है। उसका चैलेंज इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ये बता रहे हैं कि इंग्लिश में आप बोलना सिखाएंगे, ठीक है, लेकिन ग्रामर नहीं सिखाएंगे, बिना ग्रामर के सिखाएंगे, ये क्या कॉन्सेप्ट है? हमारे स्कूल में दिखाते हैं ग्रामर सीख, नंबर कटेंगे, वो बंदा ग्रामर सीखते सीखते ग्रामर हो जाता है। तो आप बताइए, ये क्या कॉन्सेप्ट है? I'll just give a small example to explain this entire concept. Imagine कीजिए, यूपी में रहने वाले जितने सारे जो लोग हैं, नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं, वो कितनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। शुद्ध, क्या वो सारे के सारे यूपी के लोग स्कूल जाते हैं? उन्होंने हिंदी व्याकरण की किताबें पढ़ रखी हैं। हिंदी व्याकरण is not the reason why they are that good in their Hindi. It's about the environment. It's about the consumption of good amount of words. It's about language immersion. So वहां पे अगर कोई खेत पे भी काम कर रहा है, लेकिन he's in that environment of listening to beautiful words in Hindi, his grammar, his pronunciation, his fluency will automatically start improving over a period of time. स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, किताबें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। A very basic एग्जाम्पल जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वही कॉन्सेप्ट हम इंग्लिश के लिए भी अप्लाई करते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हम ऐसे डाल दें जहां पे इंग्लिश के साथ जो आपका फियर है उसको हटा दें, उस माइंडसेट को, उस बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करें, और उसके बाद आपको हम वो राइट पर्टिकुलर मेथड बताएं, जिसको हम लोग हमारे एमएमडीसी के अंदर पे MMP 43 कहते हैं। इफ यू जस्ट डू दैट, यू विल बी एबल टू सेल थ्रू इन जस्ट अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर हमारे मेथड को फॉलो करो, सिर्फ 21 डेज लगता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उनको एक बच्चा बना देंगे, और बच्चे के जैसा बच्चा बोलता है ना, कुछ भी बोल लेता है, तो उसको करेक्ट कराते हैं धीरे धीरे धीरे, वो फिर वो इंग्लिश में फ्लुएंट आ जाएगा, ऐसा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यस, ओवर पीरियड ऑफ टाइम यही हम करवाते हैं उनके साथ में। सबसे बड़ा एजुकेशन का फ्लॉ है, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए व्हाट इज द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई आर स्टूडेंट्स इवन ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल नॉट फ्लुएंट। आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। गो टू एनी स्कूल इन इंडिया, गो टू एनी कॉलेज इन इंडिया, देयर इज वन टीचर, 100 students. Who speaks the most in the class? The teacher. If the teacher is speaking, फ्लुएंसी किसकी इंप्रूव होनी है? बच्चे जब एक्स्ट्रा बात करते हैं तो फिंगर ऑन योर लिप्स कह दिया जाता है, चुप रहो कह दिया जाता है। उस माहौल में कैसे इंग्लिश इंप्रूव करेगा? द फंडामेंटल फ्लॉ ऑफ एजुकेशन ऑफ द इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम इज कि अगर इंग्लिश के लिए रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग चाहिए, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे फोकस कर रहा है। They're not focusing on the output part of it, not on creation of more writing opportunities, not on creation of more speaking opportunities. In our MMDC process, we correct this particular gap in a very, very scientific way with AI now. In today's date, with AI, we have given them AI agents. Now they can talk to people. AI agents 24/7 free available, उनके मोबाइल पे available हम करवा देते हैं, and in very short span of time, they improve. फंडामेंटल्स को ठीक कर लोगे, तुरंत ठीक हो जाओगे। मतलब आप उनको जो स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी वो दिला रहे हैं, जो स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इस चीज के लिए डिस्करेज किया जा रहा है। क्योंकि अब वो घर पे तो इंग्लिश, स्कूल में तो टीचर चुप रहा रहता है, घर में घर वाले और पड़ोसी चुप रहते हैं, बड़ा अंग्रेज बना फिरता है। ये दोस्त कह देते हैं, ये दोस्त कह देते हैं तो वो चुप हो जाता है, एंड पीपल विल नॉट सपोर्ट हिम, पीपल विल नॉट एनकरेज हिम। सो हमारा मॉडल उसी चीज को एड्रेस करता है। अब आपने लाइफ टाइम कभी भी इस पर्टिकुलर मसल को इस्तेमाल नहीं किया, तो वो मसल जो है वो कमजोर हो जाएगा। अगर वो मसल कमजोर हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट इन अ फन वे, इन अ स्मार्ट वे, यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो आवर कॉन्सेप्ट सेज MMP 43. Now, what is the meaning of MMP 43? MMP is muscle power. So right now when I'm speaking, I'm using 43 muscles of my mouth to speak. If I don't use these muscles, then I will only be thinking. Most of the people have a speaking problem. Why are they not able to speak? वो think कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। Why? Because they have not been speaking. They have not been using these 43 muscles. In our particular system, we do it in a very, very smart, advanced way. And that is why student gets amazing kind of success in our system.
तो अमित जी मेरे को ना एक चैलेंज और भी दिखता है इस उसमें कि लोग हम ना हिंदी मीडियम से आते हैं, तो हमें क्या होता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर आप बोलते हैं, है ना? तो ट्रांसलेशन में जो टाइम लगता है ना, वो क्लियर है, करेक्ट? राइट। ट्रांसलेशन में जो टाइम लग रहा है ना, बिकॉज आप हिंदी में कंज्यूम कर रहे हो और प्रोड्यूस इंग्लिश में कर रहे हो, तो जो टाइम गैप आपके ब्रेन में हो रहा है ना, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग थ्रू योर माउथ। इस टाइम गैप को अगर हम कम कर दें, ट्रांसलेशन के टाइम गैप को, इफ वी स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, ओके, देन इट इज अ सोल्यूशन। ओके, आप ये चीज कर रहे हैं, अदरवाइज ना स्कूलों में आज भी हिंदी टू इंग्लिश बनाओ, हिंदी टू इंग्लिश बनाओ, वो दैट इज द इंग्लिश में। 1800 वाला पर्टिकुलर इंग्लिश थॉट प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जहां पे ट्रांसलेशन बेस्ड, ग्रामर बेस्ड तरीके से लोग पढ़ाते थे। If the teacher is speaking, only the teacher will improve. The students need to give, to be given more kind of opportunities to speak. If you look at all the MBA colleges, smart point, small point. If you look at all the MBA colleges क्या करते हैं? IIT में बच्चा क्या करता है? IIT के बाद MBA क्यों करता है? IIT में बच्चा शांत रहता है, चुप रहता है, and he is not that outwardly, not that social. But when he moves into an MBA program, उसको इतने सारे group presentations, उसको इतने सारे discussions, GDs में participate करवाते हैं, बोल 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 के वो थक जाता है, and ultimately his muscles started functioning, and then he rises to actually become the darling of the corporates at packages unimaginable. That is a ओके, simple particular twist that changes. ग्रेट। तो आप इस कमी को, इस एरिया को इम्प्रूव कर रहे हैं। चलिए, आप एक सवाल है, आप बहुत बहुत बार बार MMDC के बारे में बहुत बता रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। कोई आपकी लाइफ, आपने किसी स्टूडेंट की लाइफ में चेंज लाया, सक्सेस स्टोरी है आपके पास क्या? उसमें डिस्कस करें कुछ। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे, एमएमडीसी के चैनल पे, अमित कुमार मेहता के चैनल पे जाओगे, यूट्यूब पे, you'll find more than 180 stories which we recorded 1 year back. We stopped recording, but 180 stories of people who have got transformation results in just 21 days time. 21 days, 30 days, 40 days maximum में people have transformed. There are students who have just transformed their particular English and have got jobs in multinational. 70,000, 80,000, 90,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 8 लाख की सैलरी पे आए थे, अभी 16 लाख, 20 लाख की सैलरी पे काम कर रहे हैं। There are students who have cleared their BPSC, JPSC and state level particular exams. IELTS जिसमें किसी ने स्कोर किया था, पहले band 6 पे था, band 8, band 9 पे गया। Housewives who have got jobs after improving their English, and confidence, because it's empowering in India. If you can speak in English, people look up to you. They feel you are a genius. ये तो अंग्रेज, घना अंग्रेज है, तो सैलरी में वैसे इम्पैक्ट आ जाता है ना? Right. जैसे मैंने सुना भी है, और ये प्रैक्टिकली भी रियल लाइफ है कि आप हिंदी कॉल सेंटर पर काम करते हैं, आपकी तनख्वाह कुछ और होती है, और आप इंग्लिश कॉल सेंटर पर काम करते हैं, आपकी तनख्वाह कुछ और होती है। The average amount of increase which English can bring into your life is 30% का गैप है। तो अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं, इमेजिन कि आप 14 लाख कमाएंगे जस्ट इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपर्ली। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, द लैंग्वेज ऑफ द बोर्ड रूम। वो लोग इसी भाषा में बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट, लुक एट गूगल, लुक एट इंस्टाग्राम, लुक एट फेसबुक, किस भाषा में? इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं, यू सडनली बिकम द डार्लिंग ऑफ द कॉर्पोरेट्स, एंड यू स्टार्ट गेटिंग सीइंग दैट इन योर सैलरी अकाउंट। इवन इन कोर्ट इंडिया में इंग्लिश में ही बोलना अलाउड है, हिंदी नहीं। इंग्लिश इज अ वेरी वेरी इजी लैंग्वेज टू लर्न, बट उसके अराउंड पे जो एक मिथ, एक हाइप, एक जो प्यूरिस्ट्स, जो टीचर्स हैं, प्यूरिस्ट, जो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, बट जो एक फंडामेंटल जो थॉट प्रोसेस बना के रखा हुआ है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, ग्रामर नहीं करोगे तो नहीं होगा, अगर इंग्लिश यूके में बॉर्न नहीं हुए हो, यूएस में बॉर्न नहीं हुए तो नहीं होगा। ये जो फंडामेंटल जो बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज किया गया है ना फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, विदाउट ट्रांसलेशन नहीं होगा, इतनी बार बोला गया है ना, इट हैज गॉन इनटू द साइकी ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू इंप्रूव। बट इंग्लिश इज द easiest language to learn if you approach it in the right way. ओके, अब मुझे आपके दो सवाल हैं एक साथ। पहले कोई अच्छी सक्सेस स्टोरी जो शेयर करना चाहते हैं रियल में उनके स्टूडेंट की, और दूसरा जो इंग्लिश के आया हूँ मिस है ना, इस पर बात कर सकते, उस पर बताइए क्या क्या मिस है। I'll give you the story of one of the students who came to us, and just look at, it was all about his mindset. He came to us and he was supposed to go for a visa application. उसको बाहर जाना था,
आउट ऑफ इंडिया जाना था, एंड ही केम टू मी एंड ही केप्ट ऑन डिस्कसिंग विद मी. इट टुक मी 3 hours. He had an offline center that point of time. He came to me, he kept on discussing with me for 1.5 2 hours कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मैंने तो छोड़ दिया था, मैंने तो स्कूल में पढ़ाई करी थी, ये किया था, वो किया था. He was not able to express himself properly. And what we suggested, we were not very sure कि 15 दिन में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. It was a very difficult challenge for us कि पैसे तो हम ले लेंगे लेकिन हम डिलीवर नहीं कर पाए रिजल्ट तो. बट उसके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं था. एंड वी न्यू दैट वी हैड द बेस्ट सोल्यूशन इन द, आई फील, इन द वर्ल्ड राइट नाउ. ट्रस्ट मी, डुओलिंगो से भी अच्छा प्रोसेस है हमारा आज के दिन पे, क्योंकि डुओलिंगो भी आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे बोलता है 4 साल 5 साल सब्सक्रिप्शन देते रहो, ग्रामर सीखते रहो डेली बेसिस पे. दैट इज स्टिल द मॉडल दैट इज वर्किंग इवन विद द बेस्ट कंपनी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इन द वर्ल्ड. बट वी सेड नो. वी सेड it is possible in 15 days, it is possible in 21 days, why not give it a shot? We took that admission, we took 50% of the price that we take for the other students, and you know what, in 7 to 10 days I was talking to that man. He was a different man altogether. The fundamentals had changed. We changed his belief system, he cleared the visa application, he is now working abroad. So अब क्या मिथ है वो भी बताइए. मिथ बहुत सारे हैं इंग्लिश को लेके कि मेरे पास स्पीकिंग एनवायरनमेंट नहीं है तो मैं इंग्लिश सीख नहीं पाऊंगा. मिथ ये है कि इंग्लिश ग्रामर की रेन एंड मार्टिन नहीं पढ़ी तो नहीं हो पाएगा. मिथ ये है कि ट्रांसलेशन नहीं सीखा तो नहीं हो पाएगा. मिथ ये है कि अगर मैंने डिक्शनरी के सारे वर्ड्स, 6 लाख वर्ड्स हैं, अगर 6 लाख वर्ड्स नहीं किए तो नहीं हो पाएगा. द बेस्ट पार्ट इज इफ यू लुक एट द स्पीचेस ऑफ ऑल दीज ग्रेट पीपल, look at the words that I'm using. I'm repeating many of my words. So hardly 800 से 3000 वर्ड्स हैं जिसको लेके आप एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो. अगर आप ओबामा की स्पीच देखो, जिस स्पीच ने उन्हें यूएस का प्रेसिडेंट बना दिया था, उनके स्पीच को एनालाइज करो और चेक करो कितने वर्ड्स इस्तेमाल किए उन्होंने. 6 लाख वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए. जानते होंगे अलग टॉपिक है, लेकिन when he's addressing the people, he's not using all these words. But myth ये बना के रखा हुआ है कि डिक्शनरी नहीं करोगे तो नहीं होगा. तो ये जो मिथ है ना, दैट इज किलिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल. और एक बार ग्रामर के लूप में फंस गए, एक बार एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लूप में फंस गए, एक बार उस लूप में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान बनने की कोशिश में लग गए. आई कीप ऑन टेलिंग माय स्टूडेंट्स, डोंट बिकम आमिर खान, बिकम अक्षय कुमार. Because when you become Akshay Kumar, you do 25 films together in 1 year, acting automatically सुधर जाती है भाई. आप देख लो अक्षय कुमार को, 10 साल पहले देख लो और अभी देख लो. 8.5 की रेटिंग है बहुत सारी मूवीज में उनकी आज के दिन पे, पहले वैसे नहीं थी. सो इट्स मोर अबाउट स्टार्टिंग एंड प्रैक्टिसिंग इवन इफ इट इज अगली. लोग बीच में छोड़ देते हैं, लोग जज करने लगते हैं सेल्फ. एंड दैट इज व्हाई आवर सिस्टम कम्स इन. वी से कि भाई तुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, तो इसे कि मुझे किसी के सामने वो प्रूव नहीं करना है कि आई एम अ डफर. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोग क्या कहेंगे. वी किल दैट इन आवर सिस्टम बाय यूजिंग एआई. इससे कि भाई तू एआई के सामने तो हो सकता है ना, एआई और तू है उस रूम के अंदर पे, उसके सामने जितना भी तुझे खुलना है खुल जा, ओपन अप हो जा, प्रैक्टिस कर ले, और फिर जब व्हेन यू आर कंफर्टेबल देन कम आउट एंड स्पीक टू नॉर्मल पीपल. बिग डील. We give them the hand holding of accountability partners at MMDC, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि आप accountability partners के सामने, अपने टीचर के सामने, जैसे कहते हैं डॉक्टर से शर्म नहीं करनी चाहिए. डॉक्टर से अगर बीमारी छुपाओगे तो डॉक्टर ट्रीट क्या करेगा. तो डॉक्टर के सामने आप अपनी बीमारी खुल के बताते हो, हमारे सामने आप बता, हमारे साथ प्रैक्टिस कर लो कुछ दिन, उसके बाद जब रेडी हो जाओ तब जाके बाहर में आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करो. 21 डेज हमें दे दो, उसके बाद फिर आप नॉर्मल बाहर बात करो. अब कुछ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे टीचर भी है ना, उनकी एक समस्या है. मुझे भी अपना याद है, जैसे ना ओनियन पढ़ता था मैं, हमने पढ़ा ONION, ओनियन, क्योंकि हमारे टीचर बोला जैसे लिखा है बच्चे पढ़ लें. बाद में पता चला किसी आर्टिकल में पढ़ के इसको अनियन बोलते हैं. ओके, है ना. जैसे ऑर्किड है, हम उसको ऑर्चिड पढ़ता था मैं, वो CH है ना. अब ये चीजें क्योंकि वो स्कूल में सीख रहे हैं. आप देखो यूपी बिहार में जो बच्चे आते हैं वो एग नहीं बोलते हैं, एग बोलते हैं. इसमें क्या द पॉइंट ये है कि कलोकियलिज्म इसको कह सकते हैं कि आप अगर यूपी में हैं, अगर आप बंगाल में हैं, तो कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आपका वैसा ही रहेगा. अगर आप चाइना के हैं वैसा रहेगा, यूके के हैं अलग रहेगा, यूएस की इंग्लिश अलग है. यू शुड ओन इट अप, यू शुड फील प्राउड अबाउट इट. जब एक
यूएस का बंदा आता है इंडिया में और वो टूरिस्ट बन के घूमता है और वो हिंदी बोलने में 50 गलतियां करता है, आप उसमें हंसते नहीं हो, आप उस पर मीम्स नहीं बनाते हो, आप अप्रिशिएट करते हो कि ही स्पीकिंग, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग। बट व्हेन द सेम इंडियन मेक्स अ मिस्टेक लाइक अनियन एंड ओनियन, तो आप उसको बड़ी टांग खींचने लगते हो। तो ये थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम है, ये समाज ने ऐसे बना के रखा हुआ है। अनियन भी सही है, ओनियन भी सही है। हाँ, आपने एक दो बार की गलती, तो उसके बाद फिर जब समझ में आ जाए कि जनरल पब्लिक ऐसे बात करे तो आप उसमें मूव कर जाओ। बट इट्स नॉट रॉन्ग, दैट्स व्हाट आई सेड, कि स्टार्ट अगली, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग अगली। परफेक्शन इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। आप परफेक्शन की तरफ कोशिश करो। 100% कोई नहीं हो पाया है। आप अगर 80% भी हो, बहुत अच्छा है। आई टोल्ड यू 100 करोड़ पीपल इंडिया कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप एक इंसान हो जो इंग्लिश में बोल पाते हो फ्लुएंटली, आप सोचो आप 100 करोड़ पीपल से ऊपर हो। थिंक अबाउट इट। 80 भी हो, अमेजिंग हो। 95 तो माशाल्लाह। हाँ, मुझे भी याद है, मैं कि कोचिंग ली तो वहां पे बोलते हैं होटल नहीं होता, होटल होता है, वो एच है भाई, एच साइलेंट है, क्योंकि हम तो हिंदी से आए हैं, वो हिंदी हर छोटे वर्ड बोलता छोटे है। नुआंसेस हैं, ये छोटे छोटे नुआंसेस हैं, वही मैं बता रहा हूँ। ये प्यूरिस्ट माइंडसेट है। ये वो व्याकरण माइंडसेट है। जो टीचर्स रहेंगे, जो इंग्लिश के 10 साल के प्रकांड पंडित रहेंगे, उनको बड़ी आपत्ति होगी इन छोटी छोटी गलतियों से, कि ये वाली बारीकी को पकड़ेंगे। अगर आप देखोगे किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को देखोगे, आंसर शीट को देखोगे, जो टीचर करेक्ट करते हैं, तो लाल रंग से भर दिया रहता है उन लोगों ने। किसी को 80 मार्क्स आए हैं तो बताते हैं 20 गलतियां की हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि 80 तो पॉजिटिव लाया है भाई। ये तो देखो, देखने का नजरिया बदलो। तो रेड को आप नेगेटिव लेके मत चलो। रेड इज अ फीडबैक। फेलियर इज अ फीडबैक, दैट इज व्हाट हमारे कम्युनिटी में 9 to 5 आपने जो स्टार्ट किया है, हम लोग यही सीख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, कि भाई फेलियर जब भी आए तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट्स जस्ट अ कर्व। कर्व करो, मुड़ो, मॉडिफाई करो अपने प्रोडक्ट को, बेटर सोल्यूशन लेके आओ। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, जस्ट अ फीडबैक टू डू इवन बेटर। तो अमित जी, आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं। आप ये बताइए, क्या आप एक कोच, आप इसमें इनकम होती है आपकी, कैसे आप कमा पाते हैं, आपको ये कितना और अच्छा लगता है? इनकम की बात ऐसी है, एज ऑफ नाउ ऑल्सो मैं 9 to 5 के बाद इसको एज अ प्रोफेशन, एज अ हॉबी में देख रहा हूँ। हॉबी से मेन स्ट्रीम अभी तक मैं नहीं क्रैक कर पाया हूँ इस पर्टिकुलर डील को। आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन 3000 4000 स्टूडेंट्स आई हैव हेल्प। अब हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, जो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे हैव ग्रोन इन लाइफ। बट इन टर्म्स ऑफ मनी आई हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक इट। एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा जो मुझे इशू नजर आता है, और क्योंकि मैं एक ह्यूमैनिटेरियन थॉट प्रोसेस रखता हूँ, आई फील कि एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल। मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि 100 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे एक एक रुपया लेना चाहता हूँ। स्टार्ट मैंने इस कॉन्सेप्ट के साथ किया था, तो थोड़ी मुश्किलात आती हैं, थोड़े इश्यूज आते हैं इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजिंग, बट यस देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिकॉज अगर आप देखो, इंडिया में 40 करोड़ पीपल है, 40 करोड़ लोगों को इंग्लिश में हेल्प चाहिए। 33 करोड़ तो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, K2 स्टूडेंट्स हैं, प्लस वर्किंग कॉर्पोरेट्स, इनको हेल्प चाहिए। तो ऑडियंस बहुत बड़ा है। आप उसको, अपने मैसेज को कैसे क्राफ्ट करते हो, कैसे हेल्प कर पाते हो, हर किसी का पर्पस अलग रहता है। अगर आप उस पर्पस में, उनके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में उनका हेल्प कर पाते हो, इमेंस अमाउंट ऑफ स्कोप इन द कोचिंग सेक्टर। तो जो भी लोग इस पॉडकास्ट पे यहाँ तक देख रहे हैं ना, हम ये में खास बात बोलिए कि 4,000 लोग, स्टूडेंट 4,000 लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला चुके हैं। और पैसा जो है, अभी इनका वो है ना, इतना वाला एटीट्यूड, और अदर्स पैसे भी कमाते हैं। वो स्केल जो सोच रहे हैं ना, वो अलग ही स्केल है, लेकिन एक्चुअल में आपके लेवल पे वो कमा रहे हैं। और दूसरा, पहले जॉब प्लस साथ में पैशन को फॉलो भी कर रहे हैं। जो सोचे ना, हम तो जॉब में हैं, हम क्या करेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। भाई, अमित अमित मेहता जी को देख लो, प्रोफेसर है कॉलेज में, वो भी था, है, और है, प्लस ये भी है। मतलब टाइम ना, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको कैसे प्रायोरिटी देनी है अपने लिए, पहले अपने पेट के लिए, उसको पैसा आ रहा है 9 to 5 से, और बियॉन्ड 9 to 5 में क्या, वो जो पैशन है, तो उसको पालना है, उसको बड़ा करना है, और उसको फिर धीरे धीरे मोनेटाइज करना है। जिस दिन वो बड़ा हो जाए जॉब पे,
सब मर्जी है अपनी, है ना? बिल्कुल। मैंने बताया कि मैं सोशलिज्म का पुजारी हूँ कहीं न कहीं पर। मेरे पिताजी भी प्रोफ़ेसर रहे हैं, खानदान में मेरे सारे भाई-बहन जो हैं वो कहीं न कहीं पे एजुकेशन सेक्टर से बहुत ज़्यादा बिलॉन्ग करते हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस कोचिंग, जब भी आप बात कर रहे हैं रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत ही कम प्राइसिंग रखा था अपना, और मैंने लगभग 20-25 लाख कमाया इन 3 टू 4 इयर्स। दैट इज़ 5 टू 9, नॉट 9 टू 5 बट 5 टू 9, 20-25 लाख इन, एंड दैट वाज एट अ प्राइस ऑफ ओनली 1500 टू 2000 हमारा जब भी प्रोडक्ट का प्राइस था, जबकि मार्केट उस समय पे 15,000 चार्ज कर रहा था। अगर हम 15,000 10,000 के रूप में अपने प्रोडक्ट को लेके आते तो आज मैं आराम से 50-60 लाख पे बैठा। दैट इज द अपॉर्चुनिटी आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एनीबडी हु इज वाचिंग दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, कि अगर आप इंग्लिश में, कम्युनिकेशन में, लोगों को हेल्प करने की जर्नी में एज अ कोच सोच रहे हो, सो पैसे हैं, आपको बस बनाना आना चाहिए। एक सही गुरु, एक सही मेंटर की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी, लेकिन अगर वो आपको मिल गया, वो सही राइट कॉम्बिनेशन मिल गया, आई थिंक गोपाल कैन ऑल्सो हेल्प इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो बहुत सिंपल उनका फंडामेंटल है कि आपको 5 चीजें करनी है। गोपाल, अगर एक बार आप फिर से वो चीज दोहरा दे सबके सामने की, आपका जो मॉडल है, आई जस्ट लव दैट पर्टिकुलर मॉडल, फॉलो दैट 5 पर्टिकुलर प्रोसेसेस एंड यू विल शाइन। सर आपके। ओके, जितने भी कोचेस को देखेंगे ना यहाँ पे, जितना भी लोग देखेंगे जो कोच बनना चाहते हैं, उनके लिए 5 स्टेप रूल है। सिंपल बात, पहला आपकी नॉलेज, फर्स्ट आपकी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपका ऑनलाइन सेटअप होना चाहिए। थर्ड इज ट्रैफिक, लोग को लाना है ना प्रोग्राम पे, ऑनलाइन दुकान पे। थर्ड इज कन्वर्जन। फोर्थ इज कन्वर्जन, कैसे कन्वर्ट करोगे, सेल कैसे करोगे। फिफ्थ इज ऑप्टिमाइजेशन। ये 5 स्टेप कर लिया ना, पैसा बहुत सारा बनेगा। तो हमें जी एक चीज बताइए, क्या लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी जितनी भी डिटेल है, सोशल मीडिया डिटेल, जिससे लोग आपका आके आपके प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे अपनी? मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन पे आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। लोग हमारे सिस्टम को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ दे आर पर्सनली इंटरेस्टेड इन अ 1-to-1 सेशन और मे बी अ ग्रुप सेशन। वी हैव अ कम्युनिटी, बेस्ट पार्ट है हमारे साथ एक कम्युनिटी आपको मिल जाती है। एज ऑफ नाउ वी हैव केप्ट इट काइंड ऑफ, द कम्युनिटी पार्ट इज फ्री। वी आर गोइंग टू रीलॉन्च आवर एंटायर पैकेज बिकॉज अभी विद द ऑनस्लॉट ऑफ एआई के आने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ हम अपने प्रोग्राम को रीलॉन्च करने वाले हैं। और बहुत ही जल्द आई एम एक्सपेक्टिंग बाई सितंबर ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद in a different particular genre, in a different particular speed. That is what we're going to do. So if you want the links will be provided in the description. Just go and follow those links to get connected with us. जिसको भी इंग्लिश सीखनी है, इनको फॉलो कर लो, और ये समझना कि इंग्लिश सिखा के भी पैसे कमा सकते हो, तो समझ लो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बस इसको ओपन करो। थैंक यू सो मच अमित जी, यहाँ पे आने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच।